हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, न्यू यूनिट स्टार्ट किया था जिसका नाम था अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मींस सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिंगल एंट्री सिस्टम। So students, question number one is on the screen. So just try to understand the question and let us see how we are going to solve this problem and what accounts to be need to be prepared and what is the procedure to complete the incomplete record system. Okay, so over here following is the summary of accounting records maintained by Amit Bajaj Chopra, who keeps his books of accounts under single entry system. You are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that day. So the following is balance sheet is given to you. You are required to prepare balance sheet according to the cash book and the details given below. So uh, following is the data, that is cash book. In the cash book you can see there uh, we have given over there the balance. They have brought down the balance of the previous year, commission, sales, debtors, and some payment activities are also mentioned over here: payment, salary, fire insurance premium, wages, taxes, purchases, life insurance premium, secondary packing, primary packing, balance, credit down, etc. And some are the summaries of assets and liabilities is given over here. So students, under this summary, let us see that summary of the assets and liabilities or where stock in trade, loose tools, creditors, plant, debtors, fixtures are given over there, and the previous year's balance and the current year's balance is given over here. So and few adjustments are also mentioned over here. So first of all, we'll mark the adjustments to the related items, and then we will start our problem. So students, over here our first adjustment is the stock in hand costing 18,000 on 31st March 2019. The stock in hand costing rupees 18,000 on 31st March 2019 was valued at the invoice price of 19,000. So students, just see over here, it is mentioned that the cost price of the stock is 18,000. Okay, and it is valued at the invoice price of rupees 19,000. So just keep in mind that we don't need the invoice price of the stock. We will consider only the cost price of the stock. So this adjustment is just to make a confusion. We are not going to consider this value, that is rupees 19,000, as your invoice price of the stock. So in the second adjustment, monthly salary to be paid for the year 2018-19 amounted to rupees 250. तो इधर 250 रुपीज पर मंथ बोला है, अमाउंटेड टू रुपीज 200 मंथली सैलरी बोला है, तो आपको एनुअल सैलरी पता होनी चाहिए। तो 250 इंटू 12 आप करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे 3,000 रुपीज जो है आपका एनुअल सैलरी होता है। ठीक है, तो ये अमाउंट मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, इसका बाद में हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि आपको सैलरी कितनी दी है और कितनी आपका ईयरली सैलरी 3,000 रुपीज होगा। एंड तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मंथली सैलरी बोला है, मंथली सैलरी में आपको 250 रुपीज बोला है। तो अकॉर्डिंग टू द मंथली सैलरी ऑफ 250, हमारा एनुअल सैलरी कितना होगा कैलकुलेट करेंगे। 250 इंटू 12, तो आपका एनुअल सैलरी हो जाएगा रुपीज 3,000 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3,000 रुपीज, ये आपका एनुअल सैलरी रहेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सैलरी जो बोला है 2,250 रुपीज दिया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी 2,250 रुपीज दिया है। इट मीन्स आपका सैलरी होना चाहिए था 3,000 रुपीज,
और आपका सैलरी हुआ है 2250 रुपीज़। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं 750 रुपीज़ अभी भी जो आपको क्वेश्चन में है ये आउटस्टैंडिंग दिया है। तो ये 750 हम लोग आउटस्टैंडिंग कंसीडर करेंगे। यहाँ पे सैलरी को मैं स्टार मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि सैलरी को एडजस्टमेंट दिया गया है। तो नेक्स्ट देखिए आप एडजस्ट नंबर 3, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर, provide depreciation on fixtures at 5% per annum and plant 6% per annum. तो प्लांट और फिक्चर्स पे हम लोग को डेप्रिसिएशन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये फिक्चर्स की वैल्यू है, यहाँ पे प्लांट की वैल्यू है। तो इन पे डेप्रिसिएशन दिया है, तो मैं यहाँ पे प्लांट एंड फिक्चर्स पे स्टार मार्क कर लूँगा। कैलकुलेशन हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम में देखेंगे। And last adjustment is provide a reserve of rupees 1950 on book debts for bad and doubtful debts. तो हम लोग को यहाँ पे बोला है 1950 का हम लोग को जो RDD है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये RDD होता है डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट। तो आपका जो डेटर्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लोजिंग जो डेटर है 16,000, तो ये 16,000 पे आपका जो है 1950 ये सब्ट्रैक्ट होगा, जो कि आपका RDD के फॉर्म में सब्ट्रैक्शन दिखाया जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट तो देख लिए, सब समझ लिए। नाउ हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आया है सिंगल एंट्री सिस्टम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको कैपिटल बैलेंस दिया है क्या? पार्टनर यहाँ पे जो है ए पार्टनर इज देयर, मतलब अमित बजाज जो पार्टनर का नाम है यहाँ पे लिखा गया है। तो अमित बजाज का यहाँ पे कैपिटल मेंशन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आपको जो रहेगा कैलकुलेशन के टाइम में आपको डेटर्स अकाउंट एक बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट्स हम लोग को कौन कौन से बनाने हैं देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकाउंट्स यहाँ पे चेंज होते जाएंगे। तो अकाउंट्स टू बी ड्रॉन, सबसे पहले इस क्वेश्चन में अभी यहाँ पे हम लोग को ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं दिया है, मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी हम लोग को सिर्फ पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल चाहिए होता है, तो हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ये क्वेश्चन में सबसे पहले बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाने वाले हैं। नेक्स्ट सेकेंड वन जो रहेगा आपका सेंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। सेकेंड वन आपको बनाना पड़ेगा सेंड्री डेटर्स अकाउंट एंड उसके बाद सेंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, सेंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट एंड आफ्टर दैट you should have to draw ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, एंड फाइनली यू शुड हैव टू ड्रॉ अ बैलेंस शीट, ठीक है। तो इतने अकाउंट हम लोग को ये क्वेश्चन के लिए ड्रॉ करना होगा। क्यों हम लोग को ये सब बनाना है? देखिए यहाँ पे सेंड्री डेटर्स अकाउंट दिया है, बनाना है जैसे मैंने बताया आपको। हर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली कॉमन रहते हैं, ठीक है। सेंड्री डेटर्स अकाउंट हम लोग को चाहिए होता है क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करने के लिए। सेंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट हम लोग को चाहिए होता है क्रेडिट परचेसेस फाइंड आउट करने के लिए। परचेस और सेल्स का जो ट्रांजेक्शन होता है कुछ कैश में होता है कुछ क्रेडिट में होता है, तो उसके थ्रू हम लोग को ये दोनों अकाउंट के थ्रू हम लोग को क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेज के अमाउंट मिल जाएंगे। फिर उसके बाद then you should have to draw a trading account, then profit and loss account, and finally balance sheet. So students, let's start with our problem. First of all, we'll draw a opening balance sheet. मैं अभी क्या करता हूँ, सारे स्टेटमेंट जो हैं एक साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ पे जो रहेगा मैं लेफ्ट हैंड साइड में आपका पूरे जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इस साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट बनाया है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1st April 2018
देन आफ्टर दैट ये आपका लाइबिलिटी साइड रहेगा, और here amount will be written, ये आपका assets होगा, यहाँ पे amount, then sundry debtors account, after that sundry creditors account, अभी ये स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, डेली के आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना है, और जैसे जैसे आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हैबिट बढ़ते जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपको ये प्रॉब्लम जो रहेगा समझ आ जाएगा कि कौन सा हम लोग कहाँ पे पोस्टिंग करेंगे, कौन कौन से अकाउंट हम लोग को ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए यू शुड हैव टू प्रैक्टिस डेली, रिवाइज डेली, ठीक है। जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ वो बार बार देखिए, समझिए, आपको जब तक समझ नहीं आता कोई डाउट रहेगा तो हमें वहाँ पे पूछ सकते हैं चैट सेक्शन में, ठीक है। और अभी फिलहाल तो आपको असाइनमेंट्स दिए गए हैं, और पेज नंबर भी वहाँ पे मेंशन किया है, तो जो पेज नंबर का असाइनमेंट है वो आप कंप्लीट करके कॉलेज में सबमिट कीजिए। यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा, एंड ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट होगा। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट बना लिया है, ये सारे स्टेटमेंट्स होने के बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, लास्ट में बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट रहेगी, उसमें आपको सारे जो अमाउंट्स रहेंगे अकाउंट्स के वो पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए आपको जो रहेगा असेट्स एंड लाइबिलिटीज का मेंशन करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट रहेगा प्रीवियस ईयर के हिसाब से। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कैश बुक दिया गया है, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस है ₹3000, ओके। तो 3000 जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो आप कैश के अकाउंट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहले में हम लोग लाइबिलिटी साइड कर लेंगे, मैं इसको थोड़ा सा इस साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ। तो कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन का हम लोग कैश बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को और असेट्स चेक करने के लिए नीचे आप देखिए आपको समरी दी गई है। तो यहाँ पे इस समरी में स्टॉक की वैल्यू है 2018 की वैल्यूज हम लोग कंसिडर करनी है, क्योंकि हम लोग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो 12,500 आ जाएगा स्टॉक, लूज टू इज ₹3000, क्रेडिटर्स जो रहेगा आपका लाइबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये आप लाइबिलिटी साइड में इसलिए प्लांट जो रहेगा आपका 15,000 असेट में जाएगा, डेटर्स असेट में जाएगा आपका 13,500, एंड फिक्चर्स ₹8,000। ये जो चीज़ है मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेता हूँ, स्टॉक इन ट्रेड आप भी वहाँ पे पेंसिल से मार्क कर दीजिएगा। ये जो रहेगा ये एसेट का पार्ट है, लूज टूल्स आपका एसेट है, क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटी है, तो आप यहाँ पे एल लिख सकते हो, प्लांट एसेट में जाएगा, डेटर्स जो है एसेट में जाएगा, एंड फनी फिक्चर्स जो है वो भी एसेट में जाएगा। तो अभी मेरे पास टेक्स्ट बुक है स्टूडेंट, तो मैं क्वेश्चंस डायरेक्टली ये पोस्टिंग कर देता हूँ। आप भी अपनी टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए, जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया टेक्स्ट बुक परचेज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना कैश बैलेंस लिखूंगा जो हमने अभी देखा। तो कैश इज गिवन एज ₹3000, ओके। तो
यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश अमाउंटेड टू ₹3000, स्टॉक इन ट्रेड, stock in trade amounted to ₹12,500, loose tools, loose tools amounted to ₹3,000, plant 15,000, debtors 13,500, debtors 13,500, fixture 8,000 रुपीज। तो इसी तरह हमने असेट्स सारे लिख लिए हैं। लाइबिलिटी साइड में सिर्फ हमने देखा क्रेडिटर्स गया था, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹6,500। तो यहाँ पे सारे के सारे अमाउंट मैंने मेंशन कर लिया है। नाउ व्हाट यू शुड हैव टू डू, यू शुड हैव टू मेक टोटल ऑफ असेट साइड, और जो भी डिफरेंस रहेगा आपका लाइबिलिटी साइड में वो आपका ए का कैपिटल हो जाएगा। जो बैलेंसिंग फिगर जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपका क्या हो जाएगा, एज कैपिटल हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग टोटल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे। यहाँ पे 3,000 रुपीज जो है आपका 3,000 प्लस 12,500 प्लस 3,000 रुपीज प्लस 15,000 प्लस 13,500 plus 800 rupees, and the total will be rupees 47,800। हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3,000 rupees plus 12,500 plus 3,000 plus 15,000 13,500 and 8,000 रुपीज है यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने 800 रुपीज लिखा है। फिक्चर्स जो है यहाँ पे आपका 8,000 है, ठीक है। तो गलती से हमने यहाँ पे 800 लिख लिया है, वो करेक्शन कर लीजिए आप भी। तो कैलकुलेशन में यहाँ पे और डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम लोग वापस करें तो देखिए यहाँ पे 3,000 प्लस 12,500 प्लस 3,000 रुपीज प्लस 15,000 प्लस 13,500 प्लस 8,000। तो इसी तरह यहाँ पे टोटल आपका आ गया 55,000। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 55,000, and amongst this 55,000 you will have to subtract the amount of creditors, that is rupees 6,500। so is 55,000 में से 6,500 का subtraction करेंगे हम लोग, तो minus 6,500, so 48,500 will be your A's capital। so मैं यहाँ पे लिख लूँगा A's capital will be 48,500। ये आपका रहेगा बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है स्टूडेंट्स। नाउ हम लोग सेंडी डेटर्स अकाउंट देखेंगे। सेंडी डेटर्स अकाउंट के लिए जो हमारे पास प्रीवियस बैलेंसेस है वो हम लोग को नोट डाउन करने पड़ेंगे। तो सेंडी डेटर्स के लिए देखिए हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो भी नोट डाउन करना है, और उसमें कुछ हम लोग सेंडी डेटर्स में क्रेडिट सेल्स एक्चुअली फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कैश बैलेंस में यहाँ पे आपको डेटर्स का अमाउंट दिया है जो कि है 62,500। तो ये 62,500 कैश साइड में दिया हुआ है डेबिट साइड के, तो ये डेटर्स के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट विल गो टू द डेटर्स क्रेडिट साइड। ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बैलेंस दिया है तो वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अभी देखिए डेटर्स का जो बैलेंस दिया है 13,500, ये आपका डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डेटर्स अकाउंट डेबिट साइड। ओके, सो यहाँ पे लिख लिया मैंने शॉर्ट में, हिंट के लिए मेरे लिए। तो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में अमाउंट जो रहेगा आपका करंट ईयर का अमाउंट जाएगा। इट मींस यू शुड हैव टू, इसको आपने देखना, यू शुड हैव टू लुक एट रुपीज 16,000। तो आपका जो डेटर्स का अमाउंट रहेगा 16,000, ये आप
डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, सॉरी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस है, वापस एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। आपको जो ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस जो है वो है आपका 13,500, जो डेटर्स के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। एंड जो क्लोजिंग बैलेंस है ये जाएगा डेटर्स के डेबिट साइड में, और ये वाला जो बैलेंस है ये डेटर्स के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको डेबिट वाला बैलेंस डेबिट में लिखना है, क्रेडिट वाला बैलेंस क्रेडिट में, मीन्स ओपनिंग बैलेंस आपको डेबिट साइड में शो करना होगा, ठीक है। एंड जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको क्रेडिट साइड में शो करना है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग अभी अमाउंट की पोस्टिंग कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डेटर्स अकाउंट का जो डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट लिख देंगे, जो कि है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये डेटर्स अकाउंट है तो यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट आएगा, मैंने यहाँ पे जल्दबाजी में असेट एंड लायबिलिटीज लिख लिया है। तो जस्ट आप भी रेक्टिफाई कर लीजिए ये चीज़ को, ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट है, तो डेटर्स अकाउंट को जो है असेट और लायबिलिटीज नहीं लिखते हैं हम लोग, पर्टिकुलर अमाउंट करके शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है, बोथ साइड, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सेंट्री डेटर्स अकाउंट का जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड में आप यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन एंड अमाउंटेड टू रुपीज 13,500, एंड जो क्लोजिंग बैलेंस है और कैश बैलेंस, कैश अकाउंट की जो अकाउंट में बैलेंस था वो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। पहले कैश वाला ट्रांसफर कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँगा बाय कैश, कैश अकाउंट में था 62,500, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 62,500 रुपीज़। एंड इसी के साथ जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी लिख लूँगा मैं, बाय बैलेंस सी डी, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिया था 16,000, सो आई विल राइट 60,000 ओवर हियर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो डेटर्स के अमाउंट है वो पोस्ट कर लिया हमने। अभी कुछ कैलकुलेशन करना होगा, टोटल करेंगे हम लोग, पहले 62,500 क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हैं हम लोग। सो क्रेडिट साइड का जो टोटल है आपका आएगा 78,500 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ पे अकाउंट जो है वो क्लोज कर देंगे 78,500 से, ठीक है। सो यहाँ पे अकाउंट क्लोजिंग के लिए एक लाइन यहाँ पे लिख लेंगे, और आपका जो अमाउंट है वो आ जाएगा 78,500 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 78,500, और इसी 78,500 में 13,500 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 13,500 हम लोग माइनस करने के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 65,000, जो कि आपका क्रेडिट सेल्स का अमाउंट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा टू क्रेडिट सेल्स, टू क्रेडिट सेल्स, और यही आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा बैलेंसिंग फिगर, और जिसका अमाउंट है 65,000, ठीक है। टोटल हम लोग दो साइड में लिख लेंगे 78,500 का। अभी आप सेंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट देखिए, सेंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट में भी हम लोग को सेम डेटर्स अकाउंट जैसे ट्रीटमेंट करना है। तो क्रेडिटर्स का अगर कुछ बैलेंस है तो यहाँ पे हम लोग पहले कैश बुक में देख लेते हैं, क्रेडिटर्स कहीं दिया है, मेंशन किया होगा, यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स आपका मेंशन किया है। तो इस क्रेडिटर्स जो कि है अमाउंट 40,500 रुपये, ये आप ये कैश बुक में क्रेडिट सामने दिया है, तो क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। एंड नीचे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, तो क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है जो कि है 6,500 रुपीज़, तो ये 6,500 हम लोग क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिटर के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। एंड 7,000 जो रुपीज़ दिया है ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, सॉरी, तो ये चला जाएगा क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्रेडिटर्स डेबिट साइड, ओके। तो
और इसी तरह हम लोग ये तीनों अमाउंट को पोस्टिंग करेंगे और जो डिफरेंस रहेगा उससे हम लोग को जो क्रेडिटर्स अकाउंट में है क्रेडिट परचेसेस का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सिंपली क्रेडिटर्स अकाउंट में। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में जो हमारे पास बैलेंस है पहले वो लिख लीजिए। बाय बैलेंस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है जो कि था 6500 रुपीज़। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको ये जो बैलेंस है इसके साथ साथ आपको कैश बुक में भी बैलेंस दिया था। कैश बुक का जो बैलेंस था वो हमको डेबिट साइड में लिखना है। तो यहाँ पे लिख लूँगा टू कैश कितना था 40,500 रुपीज़ एंड जो आपका क्लोजिंग बैलेंस वो लिख लेंगे यहाँ पे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। तो यहाँ पे बैलेंस सी करके लिखेंगे हम लोग 7,000 आपका आएगा डिफरेंस। आप एक बार करके चेक कर लीजिए। आपका जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है 7,000 क्वेश्चन में दिया गया है, चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, और अभी इसी के साथ हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स जो है ये क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अकाउंट क्लोज करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम सारी टोटल कर लेंगे। डेबिट साइड ज़्यादा है यहाँ पे तो 40,500 प्लस 7,000 रुपीज़ माइनस क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है 6,500। पहले हम लोग टोटल कर लेते हैं ताकि हम दोनों साइड में लिख लें। 40,500 प्लस 7,000 रुपीज़, तो आपका आ जाएगा 47,500। और इसी तरह हम लोग अकाउंट क्लोजिंग के लिए यहाँ पे नीचे लाइन खींच लेंगे और अमाउंट जो है आपका 47,500 दोनों साइड में लिख लेंगे हम लोग 47,500 रुपीज़ एंड ये 47,500 रुपीज़ आपका इसमें से 6,500 माइनस करेंगे तो आपको जो अमाउंट आएगा 41,000 रुपीज़ आएगा जो कि आपका क्रेडिट परचेज कहला जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 41,000 और इसी को हम लोग बोलेंगे क्रेडिट परचेज। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिट परचेसेस और यही आपका बैलेंसिंग फिगर भी होगा। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर करके लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया है। नाउ आई विल ड्रॉ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग वैल्यू शीट पुट अप करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट देखिए आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें से एज इट इज कौन कौन सी फिगर आपको पिकअप करनी होगी। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक जो बोला है आपको 12,500 मेंशन किया है। ठीक है, तो इस 12,500 को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे ओपनिंग स्टॉक में। उसके बाद हमने कुछ परचेज किया है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने क्रेडिट परचेज की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे कैश बुक में भी दिख रहा है आपने परचेसेस किया है कितने का 3,000 रुपीज़ का। ठीक है, ये आपका कैश बुक में है तो ये आपका कैश परचेस हो गया और क्रेडिट परचेस आपने वैल्यू कैलकुलेट की। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आइटम दिए हुए हैं ये वेजेस आपका चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट परचेसेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। डेबिट क्रेडिट आपको पता है होना चाहिए यहाँ पे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी पैकिंग और प्राइमरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, प्राइमरी पैकिंग आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्राइमरी जो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट आपको टैक्सेस दिया हुआ है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिया गया है। ठीक है, आपका जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम को आप देखिए यहाँ पे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है, मीन्स फैक्ट्री में आग वगैरह लग गई तो कुछ गुड्स का नुकसान हो गया तो उसके लिए रहता है। ठीक है, और एक इंश्योरेंस प्रीमियम था ओ ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमको कंसीडर नहीं करना है। 7,500 जो आपने को अमाउंट दिया गया है वो हम लोग नहीं कर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कैसा है, पर्सनल पर्सन का खुद का इंश्योरेंस प्रीमियम होता है
तो ये खुद के लिए कराता है, तो हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो रहेगा ये आपका सिंपली जो है बैलेंस शीट में, ये आपने खुद के लिए कराया हुआ। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है खुद के लिए होता है, खुद के लिए जो भी चीजें कराते हैं उसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये जो आपका कैपिटल रहेगा, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा एज अ ड्राइंग्स बोल के। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को याद रखनी है, कैपिटल में से ये चीज माइनस हो जाएगी ड्राइंग्स बोल के 7500 का। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब चीजें पता चल गई है। रिसिप्ट साइड में देखिए कमीशन आपको दिया है। कमीशन जो है आपका जो भी आपको रिसिप्ट हो रहा है वो है, तो आप ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड जो यहाँ पे सेल्स दिया है, सेल्स आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, और कैश बुक में है तो ये कैश सेल्स है, और क्रेडिट सेल्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर चुकी है। तो ये चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में मेंशन होगा ये। ठीक है, और आफ्टर दैट आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 18,000, ओपनिंग स्टॉक आपका 12,500, क्लोजिंग स्टॉक आपका 18,000, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग अमाउंट पुट अप करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट में वैल्यूज पुट अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख लूँगा। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस जो दिया है 12,500 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको जो परचेजेस दिया था वो हम लोग लिखेंगे टू परचेसेस, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। अब ये परचेज में कुछ परचेज क्रेडिट परचेज है और कुछ परचेज कैश परचेज है। ठीक है, तो जो क्रेडिट परचेज है वो है 41,000, एंड जो कैश परचेज है वो आपको इधर कैश बुक के अकाउंट में दिया गया है। तो कैश परचेज आपका 3,000 रुपीज़ दिया गया है। सो इस 41,000 एंड 3,000 को ऐड करके आप लिख लीजिए 44,000 रुपीज़। देन वेजेस हमने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे टू वेजेस करके हम लोग मेंशन करेंगे, जो कि रहेगा 7,500 रुपीज़। वेजेस के बाद आपको दिया है प्राइमरी पैकिंग, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू प्राइमरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग जो रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। प्राइमरी पैकिंग आपका डेटर्स अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ठीक है, तो 1,000 रुपीज़ दिया था। अभी क्रेडिट साइड में हम लोग लिख लेंगे जो अमाउंट था सेल्स का। जो सेल्स है हमारे पास दो टाइप के हैं, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स में जो है हमारा अमाउंट कैश बुक में जो दिया है 16,000। ठीक है, वो हम लोग उसमें ऐड करेंगे क्रेडिट सेल्स। और जो क्रेडिट सेल्स का अमाउंट है वो आपने जो ट्रेड सिंडिकेटर्स का अकाउंट, सॉरी सिंडिकेटर्स का जो अकाउंट ड्रॉ किया है उसमें आपको मिला है। यहाँ पे सेल्स जो है क्रेडिट सेल्स आपका अमाउंट यहाँ पे मिला है 65,000 रुपीज़। और दोनों का यहाँ पे हम लोग टोटल कर लेंगे। तो टोटल देखिए 65 प्लस 18,000 जो रहेगा 81,000 रहेगा। तो सेल्स हमारा टोटल ओवरऑल है 81,000। देन आफ्टर दैट आपका लास्ट में आप यहाँ पे लिख लेंगे क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिख लूँगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू दी गई है हमको 18,000 बताया गया है। सो यहाँ पे अभी हम लोग टोटल करेंगे, एंड जो डिफरेंस रहेगा वो देखेंगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है या ग्रॉस लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन में देखिए 81,000 आपको दिया है। 81 क्रेडिट साइड हम लोग टोटल करें 81,000 प्लस 18,000, टोटल 99,000 है। अभी आप डेबिट साइड देखेंगे वो आपको कम दिख रही है वहाँ पे, तो यहाँ पे हम दोनों साइड 99,000 लिखेंगे। इट मीन्स हमारा डेबिट साइड कम है। तो यहाँ पे आपका जो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट की जो वैल्यू रहेगी वो आपको डेबिट साइड की उसमें से माइनस करना होगा, तो ही आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। मीन्स 99,000 में आप माइनस करोगे 12,500 माइनस 44,000 माइनस 7,500 माइनस 1,000 रुपीज़। तो आपको जो अमाउंट अभी मिला है 34,000, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 34,000। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 34,000 विल बी आवर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट आ गया आपका। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। तो पहले हम लोग वो ट्रांसफर कर लेते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट का जो अमाउंट है यहाँ पे लिख लूँगा मैं 34,000 रुपीज़।
एंड आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट में कैश अकाउंट में कमीशन दिया गया है। कमीशन की वैल्यू है 1000 रुपीज़, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, तो यहाँ पे मैं वो भी साथ में लिख लेता हूँ। बाय कमीशन 1000 रुपीज़, ओके। तो 1000 कमीशन है। यहाँ पे डेबिट साइड में देखेंगे हमारे पास क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सैलरी दी गई है, सैलरी को स्टार किया है हमने, ठीक है। मीन्स वहाँ पे आउटस्टैंडिंग था 750 रुपीज़ का, हमने कैलकुलेशन किया था, ठीक है। कैसे किया था देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सैलरी थी एडजस्टमेंट में बताया था कि सैलरी 3000 रुपीज़ आपको एनुअली मिलनी चाहिए। तो अमंग दिस 3000 आपको मिल कितनी रही है, आपको यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं सैलरी का जो पेमेंट है 2250 दिया गया है। तो मैं 3000 में से 2250 माइनस करूँगा तो 750 अभी भी मुझे मिलना बचा है, बाकी है। तो ये मेरा आउटस्टैंडिंग हो जाता है। सैलरी जो रहेगा हम लोग लिखेंगे, उसमें उसका आउटस्टैंडिंग भी ऐड कर देंगे। चलो साथ ही साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे पहले तो सैलरी लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखूंगा टू सैलरी एंड सैलरी अमाउंट ₹2, 2250 प्लस इसमें उसका आउटस्टैंडिंग रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटस्टैंडिंग 750 रुपीज़। सो टोटल जो सैलरी रहेगा 3000 में डिडक्शन होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आपको यहाँ पे दिया गया है ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या क्या जाएगा। तो सैलरी के बाद आप देख सकते हैं वहाँ पे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है जो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। टैक्सेस ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में जाएगा। फायर इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में जाएगा। टैक्सेस जाएगा। सेकेंडरी पैकिंग के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे इसमें से तो सब आप मेंशन कर लोगे, फिर एडजस्टमेंट में कुछ बात रहती है तो वो भी एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सैलरी के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, यहाँ पे लिखूंगा टू फायर इंश्योरेंस। कितना दिया है आपको टेक्स्ट बुक में, आपको दिया है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 रुपीज़। देन आफ्टर दैट टैक्सेस बोला है तो मैं आपको लिख देता हूँ टू टैक्सेस एंड टैक्सेस जो है आपका 3500 है। बाद में आपको सेकेंडरी पैकिंग दिया गया है, तो सेकेंडरी पैकिंग 1250 आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। सारी हमने अकाउंट्स की जो पोस्टिंग है सब कर ली है। आप अभी आगे देखेंगे एडजस्टमेंट में कुछ चीज़ रह गई है क्या। जो सैलरी का था हमने आउटस्टैंडिंग का यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद डिप्रिसिएशन बोला है और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड एडजस्टमेंट नंबर 4 ये हम लोग को करना रहेगा। डिप्रिसिएशन फर्नीचर फिक्चर एंड प्लांट एंड मशीनरी पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए अभी हमारे पास जो फिक्चर्स है, फिक्चर्स की अमाउंट है 8000 रुपीज़। 8000 रुपीज़ पे आपको 5% का कैलकुलेशन करना है। इट मीन्स आपका जो अमाउंट आ जाएगा 400 रुपीज़ फिक्चर्स पे आ जाएगा, ठीक है। और आपका दूसरा डेप्रिसिएशन है प्लांट पे। तो प्लांट की जो वैल्यू आपको दी है 15,000 क्वेश्चन में, 15,000 पे आपको 6% बोला है। तो 15,000 फिर 6% बोला है तो कैलकुलेशन अच्छे से करना है। यहाँ पे 15 इंटू 6 90 होता है, तो यहाँ पे 900 रुपीज़ आपका प्लांट का डिप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। तो हम लोग ये डिप्रिसिएशन भी लिख लेंगे। और आरडीडी बोला है 1950, तो ये भी हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में ही मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे लिख लेंगे डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जो आरडीडी है वो लिख लीजिए पहले। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। जिसका अमाउंट हम लोग को दिया है 1950, ठीक है। यहाँ पे लिखना 1950 एंड आगे आपका डिप्रिसिएशन प्लांट एंड फिक्चर्स पे। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन आ जाएगा
प्लांट एंड फिक्चर्स पे। तो प्लांट पे जो डेप्रिसिएशन है उसका वैल्यू है 400 और फिक्चर्स पे 900, तो टोटल आ जाएगा आपका 1300 रुपीज़। ठीक है। तो इसी के साथ तो मेरे सारे ट्रांजेक्शन एंड एडजस्टमेंट्स कवर हो जाते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, प्लांट एंड मशीनरी सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करूँगा। ठीक है। तो क्लोज करने के लिए मैं सबसे पहले टोटल करूँगा क्रेडिट साइड की। देखिए तो यहाँ पे 34,000 दिया गया है, तो 34,000 प्लस 1,000 इट मीन्स 35,000 आपका टोटल आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा दिख रही है। तो 4 + 1,000 35,000 आपका टोटल रहेगा। एंड इस 35,000 में से आप डेबिट साइड की अमाउंट माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू नेट प्रॉफिट, जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है। सो यहाँ पे 35,000 माइनस 3,000 माइनस 1,000, मैं डेबिट साइड माइनस कर रहा हूँ। 33,500 माइनस 1,250 माइनस 1,950 माइनस 1,300। तो इसी तरह आपका जो नेट प्रॉफिट है आ जाएगा 23,000 रुपीज़, जो कि आपको बैलेंस शीट में लेके जाना है, बैलेंस शीट में दिखाना है। तो अभी हम लोग बैलेंस शीट भी इसी के नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आप इजीली बैलेंस शीट बना के कैलकुलेशन कर सके। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट भी ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने बैलेंस शीट भी ड्रॉ कर लिया है। बैलेंस शीट ड्रॉ करने के बाद हम लोग पहले देखेंगे बैलेंस शीट में हम लोग क्या क्या वैल्यूज पुट अप करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने पता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल बैलेंस हमने प्रॉफिट एंड लॉस में सॉरी स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट कर लिया है ओपनिंग स्टेटमेंट में। तो आप देखिए एज कैपिटल 48,500 है। ठीक है। एंड जो आपका बाकी जो बैलेंसेस है कैश स्टॉक यूज टूल्स प्लांट आफ्टर मेकिंग डेप्रिसिएशन, वो सब आपको वैल्यूज वहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो कैश बैलेंस है वो आपको 15,000 रुपीज़ आपको दिया गया है। ठीक है। जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है यहाँ पे देखिए, तो ये हम लोग पहले 15,000 कैश बैलेंस लिख लेंगे। एंड नीचे जो आपको असेट्स दिए हैं उनके बैलेंसेस लिख लेंगे। स्टॉक का जो क्लोजिंग बैलेंस है 18,000 है। लूज टूल्स जो रहेगा आपका 3,000 रहेगा। उसके बाद प्लांट आपको बोला है जो क्रेडिटर्स आपने लिख लिया। प्लांट आपको जो बोला है 15,000 रुपीज़ बोला है, लेकिन उस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। उसके बाद डेटर्स आपको दिया है, क्रेडिटर्स आपको लायबिलिटी में जाएगा, तो डेटर्स आपका एसेट में जाएगा। एसेट 16,000 बोला है, उस डेटर्स पे आरडी आपको प्रोवाइड करना है। फिक्चर्स बोला है 8,000 रुपीज़, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन चार्ज करके अमाउंट एसेट साइड में लिखना है। एंड लायबिलिटी साइड में आपका जो पार्टनर का कैपिटल है वो आएगा, नेट प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाएगा। और जो यहाँ पे पार्टनर ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट पे किया है, ये पर्सनल अमाउंट पे किया है, मीन्स ये ड्रॉइंग्स हो गया जो कि आपको कैपिटल में से माइनस करना होगा। और आपका जो क्रेडिटर्स रहेगा, क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है आपने जो कैलकुलेट किया है, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया है 7,000, ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। और इसके अलावा एडजस्टमेंट में आपको कुछ अमाउंट आती है, वो भी चेक करना है। देखिए हम लोग को एडजस्टमेंट में यहाँ पे बताया गया है। तो ये एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट तो इररिलेवेंट है किसी भी चीज़ से। आउटस्टैंडिंग था यहाँ पे सैलरी से रिलेटेड 750, तो आउटस्टैंडिंग हम लोग लाइबिलिटी में शो करते हैं। डेप्रिसिएशन बोला है आपको यहाँ पे, डेप्रिसिएशन जो है हम लोग डायरेक्टली माइनस कर देंगे एसेट में। एंड जो आरडीडी है ये भी हम लोग डेटर्स में से माइनस कर देंगे। तो अभी मैं डायरेक्टली पोस्टिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए, जो अब तक हमने अमाउंट कैलकुलेट किया है वो सारे के सारे अमाउंट हम लोग यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो कैश बैलेंस है वो आ जाएगा। कैश आपका दिया है 15,000, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 15,000 रुपीज़। स्टॉक इन ट्रेड बोला है आपको, स्टॉक इन ट्रेड, और स्टॉक इन ट्रेड का अमाउंट है 18,000 रुपीज़। स्टॉक इन ट्रेड के बाद आपको लूज टूल्स बोला है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा लूज टूल्स, जो कि है 3,000 रुपीज़। आफ्टर लूज टूल्स प्लांट इज गिवन ओवर हियर,
प्लांट इज 15,000 रुपीज, उसमें से आपका डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन जो है 6% से था, तो डेप्रिसिएशन 6% से लेस करना है, तो हम लोग इनर कॉलम में वो अमाउंट लिख लेंगे पहले। 15,000 जो रुपीज़ है, 15,000 रुपीज़ में से 6% डेप्रिसिएशन होता है 900 रुपीज़, एंड इस 900 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा 14,100 रुपीज़। ठीक है, उसी के साथ आपका प्लांट के बाद आपको डेटर्स दिया गया है, डेटर्स में से आरडीडी माइनस करना है हमको। तो यहाँ पे मैं डेटर्स लिखूंगा, डेटर्स की अमाउंट भी इनर में लिख लीजिएगा। 16,000 जो आपका डेटर्स का अमाउंट है उसमें से आप माइनस करेंगे आरडीडी, जो आपको क्वेश्चन में बोला था रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो जो है 1950। आफ्टर मेकिंग सब्सट्रैक्शन आपको मिलेगा 14,050 रुपीज, एंड आफ्टर दैट फिक्सचर्स बोला है आपको। ठीक है, तो fixtures amounted to rupees 8,000, and amongst this 8,000 you should have to deduct the depreciation which will be charged at rupees 5% per annum। तो 5% हमने अभी कैलकुलेट किया था, 400 रुपीज़ आया 8,000 का। तो 5% माइनस करने के बाद आपको अमाउंट मिलेगा 7,600 रुपीज़। एंड लाइबिलिटी साइड में आप देखिए, यहाँ पे आपको एज कैपिटल बोला गया है। एज कैपिटल जो है कैपिटल बैलेंसेस लिखना है, तो कैपिटल बैलेंसेस है 48,500 रुपीज़। Now we should have to add net profit over here। तो हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, जो कि आपका 48,000 में ऐड होगा। तो हम लोग यहाँ पे इंटरनल में हम लोग को कैपिटल लिखना चाहिए था, इंटर कॉलम में। सो ओवर हियर आई एम मेकिंग द स्पेस। सो यहाँ पे हम लोग एज कैपिटल इंटर कॉलम में लिखेंगे। एज कैपिटल जो कि अमाउंट है एक कैपिटल का 48,500 रुपीज़, एंड इस 48,500 में हम लोग ऐड करेंगे उनका नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जो है अमाउंटेड टू रुपीज़ है 23,000 रुपीज़। ठीक है, तो 23,000, अब इस 23,000 में हम लोग ऐड करने के बाद हमको टोटल मिलेगा। देखिए यहाँ पे चेक कर लेंगे हम लोग, 48,500 प्लस 23,000। So here net profit is rupees 71,500। तो इस 71,500 में हम लोग जो पार्टनर ने ड्राइंग लिया था LIC का, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे लेस ड्राइंग्स हम लोग बोलेंगे यहाँ पे। तो ड्राइंग्स किस चीज़ का है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, LIC का प्रीमियम पॉलिसी है, प्रीमियम है 7,500 रुपीज़ का। आफ्टर मेकिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ 71,500 फ्रॉम 7,500 फ्रॉम 71,500, हमको जो अमाउंट मिलेगी वो होगी 64,000 रुपीज़। सो हमारा कैपिटल हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 64,000, एंड योर क्रेडिटर्स, value of creditors is rupees 7,000 rupees, and outstanding salary is rupees 750। तो इसी तरह भी हम लोग ने सारे आइटम्स लिख लिए। हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेंगे, पहले लाइबिलिटी का टोटल करते हैं, एसेट्स का टोटल करते हैं। 15,000 प्लस 18,000 प्लस 3,000 प्लस 14,100 प्लस 14,050 प्लस 7,600। तो इसी तरह टोटल आपका आएगा 71,750। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 71,750, एंड अभी लाइबिलिटीज का टोटल चेक कर लेंगे एक बार। 64,000 प्लस 7,000 प्लस 750, तो इसी तरह आपका 71,750 टोटल आ गया है। एंड ये आपका यहाँ पे अकाउंट क्या हो जाता है, टैली, और इसी तरह के साथ हमारा जो प्रॉब्लम होता है खत्म। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ टॉपिक सिंगल एंट्री। आई नो आपको ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ जाएगा, डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको ये टॉपिक समझते आ जाएगा। इतना रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और रेगुलर जुड़े रहिए अकाउंट से, फर्स्ट ईयर अकाउंट से। वीडियोस को
लाइक कीजिए अगर समझ आया तो। कुछ डाउट रहेगा तो वहाँ पे हमको कमेंट सेक्शन या चैट में आके पूछिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो आई मेड so I hope I made myself clear. Thanks for watching. Thank you.